गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ कृपावलब्धमहती श्रीपाञ्चरात्रागमान् तत्तत्वैदिकतान्त्रिकः प्रणयिनः पूज्या विलासाश्रयान् भारद्वाजवतौपगायन सुधी शाण्डिल्यमौञ्ज्यायनान् पञ्चर्षीन् सह कौशिकान् कुलगुरून् वन्दे महायोगिनः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। हरिः ओम तत्सत्। श्री गोविंद 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 अस्य श्री भगवतः महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये श्री क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमंत ऋतौ चापमासे शुक्लपक्षे दशम्यां शुभतिथौ बृहस्पतिवासरयुक्तायां अपभरणी नक्षत्रयुक्तायां श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरण शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकल विशेषण विशिष्टायां अस्यां दशम्यां शुभतिथौ श्री भगवतः श्री वासुदेवस्य दिव्याज्ञया श्री वासुदेव प्रीत्यर्थम अस्य देवदेवस्य भगवतो वासुदेवस्य श्री भूमनीला पद्मावती नायिका समेत श्री श्रीनिवास स्वामी सन्निधौ अस्याः देवदेव्याः भगवत्याः श्री पद्मावती महालक्ष्म्याः प्रीत्यर्थम राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम कल्याण महोत्सव कर्मणि कल्याण उत्सवानिकी समर्पिंచుకున్న ఉభయదాతలు మీ గోత్రం పేరు నక్షత్రం మీ శ్రీమతి యొక్క పేరు నక్షత్రము మరియు మీ పిల్లల యొక్క పేరు నక్షత్రమును మనసులో స్మరించుకోవలసిందిగా కోరుచున్నాం. கல்யாணோத்சவத்துக்கு சமர்ப்பித்த உபயகாரர்கள் உங்கள் கோத்திரம் பேர் மாமியுடைய பேர் குழந்தைகளுடைய பேரை மனசில் நினைத்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். सर्वेषां भक्तानां क्षेमस्थैर्य वीर्यवजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्वकार्यानुकूल सिद्ध्यर्थं अरोग दृढगात्र वज्र शरीरता सिद्ध्यर्थं श्रीपाञ्चरात्र भगवच्छास्त्रोक्त विधानेन कल्याण महोत्सवम् आचार्य मुखेन करिष्ये। श्री पद्मावती प्रीयतां प्रीयतां भगवती पद्मावती। मंगलवाद्यम। महालक्ष्मियै नमो नमः। திருச்சானூர் திருவே போற்றி போற்றி, அண்டலர் கமலம் போன்ற அழகிய வதனி போற்றி, அலைக்கடல் அமுதமாக அவதரித்து எழுந்தாய் போற்றி,
குன்றிட அமுதோடு கூடவே பிறந்தாய் போற்றி, குளிர்ந்த மாமதியினோடும் கூடி வந்த உறவே போற்றி போற்றி என்று இதோ ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயாரை சேவிப்போம். பக்தர்களே, ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயாரினுடைய திருமண வைபவம் திருச்சானூரிலிருந்து ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் நேரடி ஒளிபரப்பில் நாம் இப்பொழுது சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம். பத்மாவதி தாயார் திருமண வைபவம் பாஞ்சராத்திர ஆகமப்படி முதலில் சங்கல்ப பூஜை, பின்னர் சேன நாயக்கரான விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாக வாச்சனம் நடைபெற உள்ளது. பஞ்ச பௌதிகள் நிலையான சப்த ஸ்பரிச ரூப ரச கந்தாதி விஷய ஆகிய சுக போகங்களில் இருந்து மனிதனை மாற்றி பரமாத்மா சேவையில் ஈடுபட செய்வதேதான் பாஞ்சராத்திர சாஸ்திரம். அப்படி இந்த பாஞ்சராத்திரத்தை பற்றி 108 என்று பெரியோர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள். ஸ்ரீமன் நாராயணனே 5 இரவுகளும், அதாவது லக்ஷ்மிக்கும் பிரம்மாவிற்கும் அனந்தனுக்கும் கருடனுக்கும் ஏன் விஸ்வக்சேனருக்குமான உபதேசித்த அர்ச்சனை இதான். அப்படி தினமும் திருச்சானூரில் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற பாஞ்சராத்திர ஆகமப்படி நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய திருமண வைபவத்தை தான் நாம் இப்போது கண் குளிர சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அலர்மேல் மங்கை தாயாக இந்த பூலோகத்தில் வந்து தாமரை மலரிலே அவதாரம் எடுத்து திருச்சானூர் என்கின்ற அற்புதமான திவ்ய ஸ்தலத்தில் அலர்மேலும் மங்கை ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார் என்னும் பல பல திருநாமங்களோடு எழுந்தருளியிருக்கிறார். அந்த திருநாமங்களின் விஷயத்தை எல்லாம் நமக்கு அருள்பாலித்தும் கொண்டிருக்கிறார். அழகான இவளுடைய கடைவிழி பார்வைக்கு ஏங்கி தானம் புரிகின்ற அடியவருக்கு சகல சம்பத்களையும் வழங்கும் வல்லமை படைத்தவள். இதோ திருவிழிகள், திருவதனம், இந்த புன்னகை, இதையெல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது நம் இல்லங்களிலும் சரி உள்ளங்களிலும் சரி நிறைந்து மனை வீடு சுக சௌக்கியங்களை அனுபவிக்கக்கூடிய வரங்களை பெற்றிருக்கிறோம் அல்லவா பக்தர்களே. இதோ தீபத்தில் மகாலட்சுமியை வழிபடுவது எல்லா நல்ல பலன்களையும் கொடுக்கும். அப்படி லக்ஷ்மி தேவி பார்க்கடலில் தோன்றிய போது ஏற்பட்ட ஆழகால விஷத்தை சிவபெருமான் ஏற்க அதன் பின் நினைத்ததை தரும் காமதேனு ரிஷிகளை சென்று அடைந்ததல்லவா. மிக உன்னதமான உச்சஸ்வரியம் என்ற குதிரை ஐராவதமும் தேவர்களின் அதிபதியான இந்திரனை அடைந்தன. மகாலட்சுமியும் உத்பவித்து மகாவிஷ்ணுவை மனம் புரிந்து கொண்டாள். இவளுக்கு விருப்பமானவை சாமந்தி பூ, வில்வம், தாமரை, கண்ணாடி, மஞ்சள், குங்குமத்தில் எப்பொழுதும் குடிக்கொண்டிருப்பவள் நம் மகாலட்சுமி தாயார். இதோ கஜலட்சுமி இரண்டு பக்கமும் யானைகள், பொற்களத்தில் அபிஷேகம் செய்ய 4 கைகளில் தாமரை, அபய வரத ஹஸ்தத்துடன் காட்சி தருகிறாள் பத்மாவதி தாயார். இந்த லக்ஷ்மியை சேவித்தால் அரச பதவி, வெற்றி போன்றவை கிட்டும், செல்வம் கூட செழிப்பும் தேடி வருமாம். அப்படிப்பட்ட அந்த பத்மாவதி தாயாரை இதோ நாமும் சேவிப்போம். யா தேவி சர்வபூதேஷு தயாரூபேண சம்ஸ்திதா நமஸ்தஸ்யை 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 நமோ நமஹ என்று. மகாலட்சுமி தாயே, தாங்கள் ஸ்ரீமன் நாராயணின் அங்க சௌந்தரியத்தை பார்த்து சந்தோஷிப்பதற்காக வெட்கத்துடன் கடை கண்ணால் பார்க்கின்றீர்கள். கருவண்டு போல் கருத்ததாகவும் குளுமை பொருந்தியதாகவும் இருக்கின்ற தங்களது கடைக்கண் பார்வை நீருண்ட மேகம் போல் கருத்த பகவானுடைய திருமேனியில் பட்டதும் அவரது தேகமெல்லாம் அதிக சோபை வாய்ந்ததாய் ஆகிறது. தன்னை துதிப்பவர்களுக்கு சகல செல்வத்தையும் கொடுப்பதில் திடமான சங்கல்பம் உள்ளதாகவும் இருக்கிறது. அந்த கடைக்கண் பார்வையானது எனக்கு மங்களத்தை கொடுக்கட்டும். அது மட்டுமல்ல, மலர்ந்த நீலோத்பல மலரினை போலுள்ள பகவானுடைய திருமுக மண்டலத்தின் அழகை பார்த்து சந்தோஷிப்பதற்காக தங்களால் அனுப்பப்பட்ட கடாட்சமானது மத்தியில் பகவானின் கடாட்சத்தை சந்தித்து வெட்கத்துடன் திரும்பி விடுகிறதாம். கொஞ்சம் காலம் கழித்து மறுபடியும் பகவானின் முகத்தில் சஞ்சரிக்கின்றது. இவ்விதம் மலர்ந்த நீலோத்பல மலரின் பெண்வண்டு போல் பகவான் முகமண்டலத்தில் சஞ்சரிக்கும் தங்களுடைய அருட்பார்வையானது எனக்கு செல்வங்களை அழித்திட வேண்டும் என்று கூறுகிறார். பக்தர்களே, இதோ அப்படிப்பட்ட அந்த மகாலட்சுமி தாயாருடைய திருக்கல்யாணம் வைபவத்திலே இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி கலச பூஜை மற்றும்
விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாக வாச்சனத்தை செய்ய உள்ளார். நாமும் திரையின் வழியே தரிசிப்போம். அதோ அந்த பத்மாவதி தாயார் பூ மாலையால் அலங்கரித்து கொண்டு தங்க சிம்மாசனத்திலே வீற்றிருக்கிறாள் ஸ்ரீனிவாச பெருமாளை கரம் பிடிப்பதற்காக. அப்படிப்பட்ட வைபவம், அப்படிப்பட்ட மங்களகரமான வைபவத்தை தான் இதோ இப்பொழுது நாம் இந்த திரையின் வழியே தரிசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். துவாம் திரைலோக்கிய குடும்பினி, அதாவது லக்ஷ்மி ஸ்தோத்திரம். இது பிராட்டியின் பெருமையை சொல்லும் நம்மாழ்வாரின் பாசுரம் ஒன்று. மாறி மாறாத தன்னமலை வெங்கட்ட தன்னலை வாரி மாறாத பைம்பூம் பொழில்சூழ் கூர்நகர் காரி மாறன் சடகோப்பன் சொல்லாயிரத்திப்பத்தாள் வேரி மாறாத பூமேல் இருப்பால் வினை தீர்க்குமே என்று. திருவாய்மொழியின் பல நூறு பாசுரங்களும் எம்பெருமானின் குணங்களையும் சரி சிறப்புகளையும் சரி பல படியாக பேசுவதாக இருந்தாலும் கூட அவை அனைத்துமே பிராட்டியின் பெருமையோடு இணைந்து ஒளிபெறுமாம். பெருமானின் பெருமையை காட்டுவது என்பது வைணவ உரையாசிரியர்களின் அபிப்பிராயம் அல்லவா? அப்படி பகவானை நொடி நேரம் விட்டு பிரியாமல் சந்தோஷத்தை உண்டு பண்ணுவதும் சேதனர்களுக்கு புருஷ காரமாக விளங்குவதும் பிராட்டியினுடைய இயல்பு. காரணம் என்ன தெரியுமா? திருமந்திரத்தை விடவும் சரம ஸ்லோகத்தை விடவும் இடையில் இருக்கக்கூடிய துவய மந்திரம் பல்வேறு கோணங்களில் மிகவும் சிறப்பானது என்பதை வைணவ ரகசிய நூல்களும் கூறுகின்றது. இந்த விஷயத்தை தான் திருவெங்கட பாசுரத்தில் அகிலகிலேன் இறையும் என்று இருக்கும் அலர்மேல் மங்கையை முன்னிட்டு புகழ் ஒன்றுமில்லாத அடியேன் உன் அடிக்கீழ் புகுனேன் என்று சரணாகதி செய்கிறார் சுவாமி நம்மாழ்வார். வேதம் பிரதிபலிக்கும் துவயமந்திரம் விளக்கத்தை சிந்தாமல் சிதறாமல் சொல்வதால் தான் திருவாய்மொழியாரின் இசை வேதத்து இயல் என்று கூறுகிறார். सनो भव शिवस्त्वज्ञा सुप्रतीको विभावसुः प्रेदग्न ज्योतिष्मान्याहि शिवेभिरोच्यभिष्टाम् बृहद्भर्बाणुभर्बासं माहिज्ञसे स्तन्वा प्रजाः अक्रन्ददग्नस्तनयन् वद्योक्षमारेरिहद्वेरुधः समञ्जन् सद्यो जज्ञानो विहेमिद्धो आख्यदारोदसी भानुनाभात्यन्तः प्रप्रायमग्निर्भारतस्य शृण्वयत्सौर्यो नरोचद बृहद्भोः अभियः पूर्वं मृतनासु तस्थौ दिदाय देव्यो अतिथिः शिवो नः आपो देवे प्रतिगृह्णेत भस्मै तत्स्यो न कृणुद्भग् स्वरभावो लोके तस्मै नमन्दाञ्जनयत् स्वपत्न्यर्मादेव पुत्रं बिभृताप्स्वेनत् अप्स्वग्ने सदिष्टवसौषधिरणोरुध्यसे गर्भे संजायसे पुनः गर्भो अस्योषधीनां गर्भो वनस्पतीनां गर्भो विश्वस्य भूतस्याग्ने गर्भो अपामसि प्रसद्य भस्मानायोनिमपश्च पृथिवीमग्ने सग्सृज्य मातृभिष्टं ज्योतिष्मान् पुनरासदः पुनरासद्य सदनमपश्च पृथिवीमग्ने सग्सृज्य मातृभिष्टं ज्योतिष्मान् पुनरासदः पुनरासद्य सदनमपश्च पृथिवीमग्ने शेषे माधुर्यथोपस्थेन्तरस्याग्ने शिवतमः पुनरोर्जानिवर्तश्व पुनरग्न इषायुष पुनः पाह्यग्रहसः सह रय्यानिवर्तश्वाग्ने पिण्डस्वधारय विश्वप्स्न्या विश्वदस्परे
बोधा मे अस्य वचसो यवेष्ठमग्निष्ठस्य प्रभृतस्य स्वधावः पीयादि त्वा अनत्वा गृणादि मन्दारोष्टदम्बं वन्दे अग्ने सबोध सूर्यर्मघवा वसोपदे वसोदावन् योऽध्यस्मद्वेषा अग्नेसि विश्वकर्मणे स्वाहा पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवस्समिन्धतां पुनर्ब्रह्माणो वसुनेधयज्ञैः घृतेन त्वं दन्दं वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामा स्वाहा अपेतवे च सर्पततो यत्र स्थपोराणाय च नूतनाः अदाद्यमावसानं पृथिव्या अक्रन्निमं पितरो लोकमस्मै संज्ञानमसि कामधरणं मयेते कामधरणं भूयात् अग्निर्भस्मास्यग्ने पुरेशमसि चितस्थपरिचित ऊर्ध्वजित श्रयध्वम् अयज्ञसो अग्निर्यस्मिन् स्वाममिन्द्रश्रुतं दधे जठरे वावसाना सहस्रियं वाजमत्यन्न सप्त्यज्ञासु सवान् संस्तो यसे जातवेदः अग्नयत्ते दिविवच्चः पृथिव्याय दोषदे वप्स्वाय जत्रा तेनान्तरिक्षमुर्वा ततन्धत्वेषः स भानुर्नवो नृचक्षाः अग्ने दिवो अर्णमज्जाजघास्यच्छा देवा ओजिषे धिष्ण्ये चारो जन परस्तात् सूर्यश्च याश्चावस्तादुपतिष्ठन्त आपाः पुरेष्यासो अग्नयः प्रावणेभिः सजोषसः जुषन्तां यज्ञमद्रुगोडमीवा इषो महेः विलामग्न पुरोदग् सग्गसनिङ्गोष्वश्वत्तमग् हवमानाय साधा स्यान्न सोनस्तनाय विजागाग्न साते स्वमतिर्भोत्वस्मे अयन्ते यो नः ऋत्वियो यतो जातो अरोजथाः सञ्जानन्नग्न आरोहाधानो वर्धयारयम् चिदासतया देवतायाङ्गिरस्वध्रुवासेदा परिचिदासतया देवतायाङ्गिरस्वध्रुवासेदा लोकं प्रणच्छद्रं प्रणाधो सेदध्रुवात्वम् इन्द्राग्ने त्वा बृहस्पतिरश्मिन् योना अशेषदन् तास्य सोददोहसस्वमग्नश्रेणन्ते प्रश्नयः जन्मं देवानां विषस्पृष्पारो जने दिवः इन्द्रं विश्वा अवेवृधन् समुद्रव्याजसङ्गिराः तथेतामग्नारथेनां वाजानाग्न सत्पदिं पदिम् समेतज्ञ सङ्कल्पथाज्ञ सम्प्रेयो रोजेष्णो सोमनस्य मान एकमोर्जमभिसंवसान सम्ब्राह्मणाज्ञसि संव्रता समोचित्तान्याकरम् अग्ने पुरेष्याधिपा भवत्पन्न इषमोर्जं यजमानाय धेहे अग्ने त्वं पुरेष्यो रयिमान् पुष्टिमां असि शिवाः कृत्वादिशः सर्वाः स्वं योनिमिहासदः
भवदन्नस्य मनसौ सचेतसा अरेपसौ मा यज्ञज्ञाहिज्ञासिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवो भवतमध्यमाः मा ते वा पुत्रं पृथिवी पूरेष्यामग्निग्रश्वे योना अभारुघा तां विश्वेर्देवैरतुभिः संविधाम प्रजापतिर्विश्वकर्मा विमुञ्चतु असंवन्दमयजमानमिच्छस्तेनस्तेत्यामन्वेहि तस्करस्य अन्यमस्मदिच्छसात इत्यानमो देवि निररते तुभ्यमस्तु नमस्वते निररते दिग्मतेजो यस्मयं विधृता बन्धमेतम् यमेन त्वं यम्यासं विधानोत्तमेन के अधिरोहयिनम् यस्यास्ते घोर आसंजोम्येषां बन्धानामवसर्जनाय यां त्वाजनो भूमिरिति प्रमन्दते निरवधं त्वाहं वरे वेद विश्वतः यन्दे देवे निरवधिराबन्धपाशं ग्रीवास्वविसृत्यम् तन्ते वेश्याम्यायुषो न मध्या तथैदं पितुमध्यप्रसूतः नमो भूत्ययेदञ्चकार निवेशनशृङ्गमानो वसोः नां विश्वारूपाभिचक्कशचीभिः देव एव सभिता सत्यधर्मेन्द्रो नतस्थौ समरेपथीनाम् शिरायुञ्जन्ति कवयो युगावितं वद पृथग् धीरा देवेषु सुम्नय युनक्तशिरावियुगादानुध्वं कृते यो नो वपदेह बीजम् गिरा च सृष्टिः सभारा असम्मोनेदीयत्सृण्यः पक्वमेयात् सुनज्ञ सुफाला विकृशं भूमिज्ञ सुनङ्केनाशा अभियन्दवाहैः सुनाशेरा हविषादोषमाना सुपिप्पला ओषधे कर्तमस्मे घृतेन सेता मधुना समज्जतां विश्वेर्देवैरणो मतामरुद्भिः ओजस्वती पयसा पिन्वमानास्मान् सीते पयसाभ्याववृत्स्वा लाङ्गलम्बवेरवत्सुषेवज्ञ स्वमपित्सरो तदुद्वापतिगामव्यं प्रफर्यञ्च पिबरें प्रस्थावद्रथवाहनम् कामं कामदुघे दुःखमित्राय वरुणाय च इन्द्रायाश्वेभ्यां वोष्णे प्रजाभ्य ओषधीभ्यः विमुच्यध्वमघ्न्या देवयाना अगन्मतमसस्पारमस्य ज्योतिरापामा सजोरब्दो अयवोभिः सजोरुषा अरुणेभिः सजोषसा अश्विना दग्धसोभिः सजोस्वरयतशेन सजोर्वैश्वानर इलया घृतेन स्वाहा या ओषधेः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रयुगं पुरा मनेन बभ्रूणामहग्शतं धामानि सप्त च शतं वो अम्बधामानि सहस्रमुतवोरुहाः अधाशतक्रत्वा यूयमिमं मे अगधं कृता ओषधे प्रतिगृह्णेत पुष्पवते प्रसोदरेः अश्वायुव सचत्वारेर्वेरुधः पारयिष्णवः ओषधिर्ते मातरस्तद्वो देवेरुपब्रुवे
सनयमश्वङ्गां वास आत्मानन्तव पूरुषा अश्वत्थेवो निषदनं पर्णेवो वसतिष्कृता गोभाजयित्किलासधयत्सनवधपूरुषम् यत्रौषधे समग्मदराजानः समेता इव विप्रस्स उच्यते भिषग्रक्षोहामेव जातनः अश्वावते सोमावते मूर्जयन्ते मुदोजसम् आवित्स सर्वा ओषधेरश्मा अरिष्टदादये उच्छुष्मा ओषधीनाङ्गावो गोष्ठादिवेरते धनग्नसनिष्यन्ते नामात्मानं तव पूरुषा निष्कृतिर्नाम वो माताथो यो यज्ञस्थनिष्कृति सेराः पदत्रिणेः स्तनयदामयति निष्कृता अतिविश्वाः परिष्ठास्तेन एव व्रजमक्रमः ओषधे प्राचुच्यवुर्यत्किञ्च तन्वोरपाः यदि मा वाजयन्नहमोषधेर्हस्ता आदधे आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुराजे वगृभो यथा यस्यौषधे प्रसर्पथाङ्गमङ्गं परुष्परुः ततो यक्ष्मं विभादध्व उग्रो मध्यमशीरेव साकं यक्ष्मप्रपातचाषेण किकिदिविना साकं वातस्य ध्राज्या साकर्णस्य निहाकया अन्यावो अन्यामावत्वन्यान्यस्य उपावता ताः सर्वाः संविधाना इदं मे प्रावता वचाः याः फलिनेर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पिनेः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वग्रहसः मुञ्चन्तो मासपथ्यादथो वरुण्यादुताम् अथो यमस्य पड्वेषात् सर्वस्माद्देवगल्भिषात् अवयते समावदन्त दिव ओषधयस्परे यञ्जीवमश्नवामहेन सरेष्याधिपूरुषः या ओषधे स्वामाराज्ञैर्बह्वे सतविचक्षणाः तासामसि त्वमुत्तमारङ्कामायशग्रं हृदे या ओषधे स्वामाराज्ञैर्विष्ठेता पृथिवी मनो बृहस्पतिप्रसूता अस्यै संदत्तवीर्यम् याश्चेदमोपशृण्वन्ति याश्च दूरं परागताः सर्वाः सङ्गत्य विरुदोऽस्यै संदत्तवीर्यम् नाशयित्रे बलासस्यार्षस उपचितामसे अथो सतस्य यक्ष्माणां पाकारो रसिनाशने मावोरिषत्खडिता यस्मै चाहं खणामि वः दिपच्च दुष्पदस्माकज्ञ सर्वमस्त्वनातुरम् ओषधयः संवादन्ते सोमेन सह राज्ञा यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तग्राजन्वारयामसे त्वाङ्गं धर्वाघनग्रस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः तामोषधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यताम् त्वमुत्तमास्योषधे तव वृक्ष उपस्थयः उपस्थिरस्तु सोऽस्माकं यो अस्मान् अभिदासते। लोकेषु अधिप्रेति जायते ए प्राणायेति प्राणाय व्यानायेति वि अनाय अपानायेत्यप अनाय वाचे त्वा चक्षुषे त्वा तया देवतया अंगिरस्वत ध्रुवा सीदा अग्निना वै देवाः
सुवर्गमिति सुवहागं लोकम् अजिगागुं सन् तेन पतितुं न अशक्नुवन् ते एताः चतस्रः स्वयमातृण्णा इति स्वयम् आतृण्णाः अपश्यन् ताः दिक्षु उपेति अदधत तेन सर्वतश्चक्षुषेति सर्वतः चक्षुषा सुवर्गमिति सुवहागं लोकम् आयन् यत् चतस्रः स्वयमातृण्णेति स्वयम् आतृण्णा दिक्षु उपदधातीत्युपदधाति सर्वतश्चक्षुषेति सर्वतः चक्षुषा एव तत् अग्निना यजमानः सुवर्गमिति सुवहागं लोकम् एति अग्ने एति याहि पीतये इति आह अह्वता एव एनम् अग्निं दूतं वृणीमहे इति आहाहूत्वा एव एनं वृणीते अग्निना अग्निः समिति इध्यते इति आहा समिति इन्धे एव एनम् अग्निः वृत्राणि जङ्घनत् इति आह समिद्ध इति सम् इद्धे एव अस्मिन् इन्द्रियं दधाति अग्नेः स्तोमं मनामहे इति आह मनुते एव एनम् एतानि वै अह्नाम् रूपाणि अन्वहमित्यनो अहम् एव एनं चिनुते अवेति अह्नाम् रूपाणि रुन्धे ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति कस्मात् सत्यात् यातयाम्नीरिति यातायाम्निः अन्याः इष्टकाः अयातयाम्नीत्ययातायाम्नि लोकं प्रणेति लोकं प्रण इति ऐन्द्राग्नीत्यै इन्द्र अग्निः बार्हस्पत्या इति ब्रूयात् इन्द्राग्नि इति इन्द्र अग्नि च हि देवानां बृहस्पतिः च अयातयामान इत्ययातयामानः अनुचरवतीत्यनुचरवती भवति अजामित्वायेत्यजामि त्वाय अनुष्टुभेत्यनुस्तुभा अन्विति चरति आत्मा वै लोकं प्रणेति लोकं प्रण प्राण इति प्राणः अनुष्टुभित्यनुस्तुप तस्मात् प्राण इति प्राणः सर्वाणि अङ्गानि अन्विति चरति ताः अस्य सूददोहस इति सूददोहसः इति आह तस्मात् परुषि परुषीति परुषि परुषि तसः सोमं श्रीनन्ति पृश्न्ययः इति आह अन्नं वै पृश्नि अन्नम् एव अवेति रुन्धे अर्कः वै अग्निः अर्कः अन्नम् एव अवेति रुन्धे जन्मन् देवानां विशः त्रिषु एति रोचने दिवः इति आह इमान् एव अस्मै लोकान् ज्योतिष्मतः करोति यः वै इष्टकानां प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठां वेद प्रतीति एव तिष्ठति तया देवतया अंगिरस्वत् ध्रुवा सीदा इति आह एषा वै इष्टकानां प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा यः एवं वेद प्रतीति एव तिष्ठति सुवर्गायेति सुवहागाय वै एषः लोकाय चीयते यत् अग्निः वज्रः एकादशिनी यत् अग्नौ एकादशिनी मिनुयात् वज्रेण एनं सुवर्गादिति सुवहागात् लोकात् अन्तः दध्यात् यत् न मिनुयात् स्वरुभिरिति स्वरुभिः पशून् वीति अर्धयेत् एकयूपमित्येकयूपं मिनोति न एनं वज्रेण सुवर्गादिति सुवहागात् लोकात् अन्तर्दधातीत्यन्तः दधाति न स्वरुभिरिति स्वरुभिः पशून् वीति अर्धयति वीति वै एषः इन्द्रियेण वीर्येण மகாலட்சுமியை நமோ நமஹ. அகில புவன ஜன்ம ஸ்தேம பங்காதி லீலே என்கிறார் சுவாமி எம்பெருமானார். படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் ஆகிய முத்தொழில்களையும் பண்ணிக்கொண்டு இருப்பவர் பரம புருஷனாகிய ஸ்ரீனிவாசர். அவளுடைய அசாதாரணமான 12 கல்யாண குணங்களின் அவரிடம் அதிகமாக பிரகாசிக்கும் குணம் வாத்சல்யமே என்கிறார் சுவாமி தேசிகன். அதுவே தய எனப்படுவது. அந்த தய என்கிற குணமே பெண் உருவம் கொண்டு ஸ்ரீதேவியாக அந்த எம்பெருமானின் வட்ஸ்தலத்திலே அமர்ந்திருக்கிறார் என்கிறார் சுவாமி தேசிகன். அது மட்டும் இல்லை, அந்த தயா குணம் அதிகமானதற்கும்
அந்த தாயாரே காரணம்தான் என்று தனது தெய்வீக நூலான தய சதக்கத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த பத்மாவதி தாயாரினுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்போது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருப்பது மாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக அந்த மாங்கல்யத்தை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அதற்கு அர்க்கியம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அதைத் தொடர்ந்து அந்த மாங்கல்யத்தை பத்மாவதி தாயாருக்கு சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இந்த காருண்ய லட்சுமியை நான் வணங்குகிறேன். அதாவது தய உருவான அந்த ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் அம்சமான அலர்மேல் மங்கை என்னும் ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார் இதோ கொலுவிக்கிறார். அந்த காருண்ய லட்சுமிக்கு இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி மாங்கல்ய தாரணத்தை செய்ய இருக்கிறார். பக்தர்களுக்கும் எம்பெருமானுக்கும் இடையே ஒரு பாலமாக பிராட்டி செயல்படுவது விளக்குவது ஸ்ரீ என்கிற திருநாமம். வடமொழியில் இந்த திருநாமத்திற்கு 6 பொருட்கள் உண்டு. முதலாவது ஸ்ரீயத்தே, பக்தர்களால் தஞ்சமாக பற்றுகிறாள். இரண்டாவது ஸ்ரீமன் நாராயணனை சரணமாக பற்றுகிறாள். மூன்றாவது தன்னை சரணம் அடைந்து கூறும் குறைகளை காது கொடுத்து கேட்கிறாள். நான்காவது பக்தர்களுக்கு பணிந்து பேசி அவர்கள் வேண்டுதல்களை பகவான் கேட்கும்படி சொல்கிறாள். ஐந்தாவது எம்பெருமானை அடைய தடையாக இருக்கும் அவரது பாப்பங்களை தன்னுடைய திருவள்ளால் போற்றுகிறாள். ஆறாவது தன்னுடைய பக்தர்களை எம்பெருமானோடு சேர்த்து வைக்கிறாள். பக்தர்களே, எம்பெருமானை கூட நாம் நெருங்க முடியாதும் என்கிறாள். அப்படிப்பட்ட அந்த பத்மாவதி தாயாரினுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை தான் இப்பொழுது நாம் இந்த திரையின் வழியே தரிசித்துக் கொண்டுள்ளோம். எம்பெருமானுக்கும் பிராட்டிக்கும் அருள் தருவதில் உள்ள வேறுபாடுகளை குறித்து நம்முடைய ஆசிரியர்கள் அழகாக சொல்லி இருக்கிறார்கள். ஒருவன் செய்த வினைகளுக்கு பலன் கொடுப்பதில் எம்பெருமானுக்கு அதிகாரம் உள்ளது. நற்செயல்களை செய்யும் அவர் நல்லருள் செய்கின்ற வேளையில் அதனை அதிகப்படுத்தி தரும் ஒரு சகாயத்தை தான் பிராட்டி செய்கிறாளாம். அதே நேரம் சேதுரன் செய்த தீவினைகளை கண்டு எம்பெருமான் தண்டிக்க முற்படும் என்கிறார். இதோ மாங்கல்யத்தை சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानत् संकल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लुप्तं क्लुप्तं श्रेयो वसीय आयत् सम्भूतं भूतं चित्रः केतुः प्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मागस्तेजस्वानातपग्स्तपन्नभितपन् रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः. శోభనాలు నీకు నతనికి తగును. నెలమూడు శోభనాలు నీకు నతనికి తగును. కలకాలము నిత్య కళ్యాణమమ్మ కళ్యాణమమ్మ కళ్యాణమమ్మ. శోభనాలు నీకు నతనికి తగును. కలకాలము నిత్య కళ్యాణమమ్మ 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 కళ్యాణమమ్మ.
आक्रमणमित्य आक्रमणं प्रतीति इष्टकाम् उपेति दध्यात् न इन्द्रियेण वीर्येण वीति रुध्यते रुद्रः वै एषः यत् अग्निः तस्य तिस्रः शरव्याः प्रतीचि तिरश्चि अनूचि ताभ्यः वै एषः एति वृश्यते यः अग्निम् छिनुते अग्निं चित्वा तिथिर्धन्वमिति तिथिर्धन्वम् अयाचितं ब्राह्मणाय दद्यात् ताभ्यः एव नमः करोति अथो इति ताभ्यः एव आत्मानं निरिति क्रीणीते यत् ते रुद्रा पुरः धनुः तत् वातः अन्विति वातु ते तस्मै ते रुद्रा संवत्सरेणेति संवत्सरेण नमः करोमि यत् ते रुद्रा दक्षिणा धनुः तत् वातः अन्विति वातु ते तस्मै ते रुद्रा परिवत्सरेणेति परिवत्सरेण नमः करोमि यत् ते रुद्रा पश्चात् धनुः तत् वातः तस्मै ते रुद्रा इदावत्सरेण नमः करोमि यत् ते रुद्रा उत्तरादित्युत्तरात् धनुः तत् वातः अन्विति वातु ते तस्मै ते रुद्रा इदुवत्सरेणेति इदुवत्सरेण नमः करोमि यत् ते रुद्रा उपरि धनुः तत् वातः अन्विति वातु ते तस्मै ते रुद्रा वत्सरेण नमः करोमि रुद्रः वै एषः यत् अग्निः सः यथा व्याघ्रः क्रुद्धः तिष्ठति एवं वै एषः एतैः सञ्चितमिति सञ्चितम् एतैः उपेति तिष्ठते नमस्कारैरिति नमःकारैः एव एनं शमयति ये अग्नयः पुरीष्याः प्रविष्टा इति प्रविष्टाः पृथिवीम् अनु तेषाम् त्वम् असि उत्तम इत्युत तमः प्रेति नः जीवातवे सुवा आपम् त्वा अग्ने मनसा आपम् त्वा अग्ने तपसा आपम् त्वा अग्ने ॐ यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवैशीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणां दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा చేసిన దైవం ఎటువంటి యోగంబులిన్నియును చేసి
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।